watching Rich Tell Tales. Welcome back to my channel. This is Rita. Make sure to like the video and subscribe to my channel if you like the video. And if you guys are new here, today's video is finally part 2 of the Sarojini Nagar Hall video, which part 1 was uploaded I think a while ago. So here's the second part, in which I had promised you guys to cover all the ethnic Indian wear outfits and of course the accessories as well. So this time my mom got a ton of accessories and I love all the earrings and neck pieces, etc. So without any further ado, let's get started. Let me first start off with the earrings. One by one, we'll start off with the silver ones and then I'll move on to the most trendiest ones which are viral on Instagram currently. Obviously not at those prices. So yes, this is the first one. These super pretty oxidized earrings which actually have a trishul at the top and a Ganpati at the bottom. It just has pearls which are, you know, basically dangling, and they're super light. So they look really heavy, but they are actually super light. I've worn them once or twice, I think, with Indian suits, and they look so good. The price of these were just $100, so I feel they were totally worth it. The second pair of oxidized earrings are these. They have an elephant. I love elephants anyway, and I love elephant earrings or prints which have elephants on it, etc. So these were a must buy. I told my mom that she better get these. These are also again oxidized and they look so good on suits which will be white or beige or, you know, just light colored suits. When you're wanting to style them in an Indian way but keeping the modern touch with it. So for those, this is like the best. These were also for 100 rupees and these are super light again. Though I did not tell my mom to get any neck piece, oxidized neck piece, she still liked this one so much, so she got one, and this is how it looks. It's like a really full, you know, which covers your entire neck piece, and of course it's not that light, but it looks super pretty with a sari, with any suit, and wherein you're not wanting to, anything which basically has silver work on it or is white in color, this is going to look so pretty. I'm yet to wear this, but this was priced at $300 only. Now the last thing oxidized which was bought was this handcuff. Of course एक bracelet तो लेना ही था, earrings ले लिए, neck piece ले लिए, तो सिर्फ यही बचा था. And this is pretty cute again. You can actually use this string and make it up to your size. तो ये काफ़ी perfect है किसी भी हाथ के लिए. आपको mostly fit आ ही जाएगा. इसके ऊपर mirror का काम किया हुआ है, and ये these are so common in Sarojini Nagar, Colaba market, etc. Basically street market, जनपथ वगैरह में भी ये मिलता है, and ये भी सिर्फ 150 रुपए का ही था. So I really like it. It's nice. It looks great with all the oxidized jewelry you can pair it up with, and for the price, it actually gives a very rich, elegant look to the whole outfit. Moving on to the famous Instagram jewelry, which is available on a ton of websites on Instagram and on Instagram pages, but they are not worth it. They are so worthly priced, and obviously they are not worth it when you're spending 3 or 4K on a particular piece of earring. जबकि आप उतने में मल्टीपल इयरिंग्स ले सकते हो अगर आप बहुत पर्टिकुलर नहीं हो उसकी गोल्ड प्लेटिंग को लेके एक्सेट्रा. सो दीज हैव बीन इन वोग. आई एम श्योर यू गाइज कैन रिलेट, एंड यू हैव सीन सो मेनी ऑफ ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स वेयरिंग दीज इयरिंग्स. ये बहुत चल रहे हैं आजकल, एंड ये वेस्टर्न वेयर के लिए परफेक्ट हैं. गोल्ड में भी अवेलेबल होते हैं एंड ये सिल्वर में भी होते हैं. दीज वर जस्ट फॉर 200 रुपीज़. दो आप इंस्टाग्राम पे जाके किसी भी पेज से लेंगे तो ये आपको 500-600 में तो कम से कम मिलेंगे. अदरवाइज few brands are selling it for even more. The next pair is pair of earrings in blue. ये actually bead work के earrings हैं. बहुत ही light है because पीछे almost thermocol जैसा material है जिसके ऊपर bead work किया हुआ है. तो weight earrings का एकदम ना के बराबर ही है. इसमें multiple colors मिल जाएंगे आपको. This is a one in blue and I have another one which I was wanting to get for so long. मुझे actually वो अपने birthday पे भी पहनना था. So this is the one in white जो कि Instagram पे इतनी रेंज में है, इतनी वोग में है. These
These are both bead earrings and they are both so fancy looking, but at the same time they are really highly priced on Instagram or on any other online website. So ये आपको सरोजनी नगर में बतेरे मिल जाएंगे, मल्टीपल कलर्स में मिल जाएंगे, डिज़ाइंस में मिल जाएंगे, साइज़ छोटा चाहिए बड़ा चाहिए आपके हिसाब से मिल जाएंगे. डू चेक दीज आउट. ये इवन सरोजनी नगर में 300 350 तक के वो लोग कहते हैं, आप बार्गेन कर सकते हैं. ये मुझे 300 का मिला था एंड ये क्योंकि थोड़ा छोटा है तो 250 का था, बट इसकी बहुत वैरायटी है. तो ट्रस्ट मी, इफ यू आर इनटू बीडेड ज्वेलरी और आपको भी ये बीड्स वाले इयररिंग्स एंड नेक पीसेस डॉन करने हैं तो आप सरोजनी नगर से ले सकते हैं. The next pair of earrings which are really classy looking and are super in vogue for the past 2 years, जो बहुत टाइम से फैशन में है, are these pearl droplets. बेसिकली pearl drop earrings हैं, गोल्ड के साथ इसका कॉम्बिनेशन भी होता है और सिल्वर के साथ भी होता है. मेरे पास एक्चुअली 3 साल पहले ऐसे थे, बट उनके पर्ल्स इतने बड़े नहीं थे और वो गोल्ड के साथ नहीं सिल्वर के साथ थे. बट आई डोंट नो, वो कहीं ना कहीं शिफ्टिंग में मिसप्लेस हो गए, तो मुझे ये चाहिए थे विथ बिगर पर्ल्स. दीज जस्ट लुक सो एलिगेंट, सो क्लासी विथ ऑलमोस्ट एनी आउटफिट. आप इंडियन या वेस्टर्न वेयर के साथ इसको टीम अप कर सकते हैं. मुझे अभी ये पहनने बाकी हैं. एक्चुअली आई हैवंट worn these because these are brand new, but I'm so excited to style these with a ton of outfits. These were again for 200 bucks. ऐसी चेन्स मैं कब से देख रही हूँ, मल्टी कलर्ड या सिंगल कलर में, नियॉन कलर्स में. ओ माई गॉड, दीज चेन्स आर सो इन. मोस्टली यंगर लॉट के साथ गर्ल्स फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 18 to 25 आर लविंग दीज. मुझे एक्चुअली इतनी बड़ी चेन्स पहनने की आदत नहीं है. आई यूजुअली डोंट वेयर एनीथिंग इन द नेक. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स रियली डेलिकेट, एलिगेंट, छोटी छोटी बहुत बारीक और हल्के पीसेस होते हैं जो मैं पहनती हूँ. बट जस्ट बिकॉज ये इतना फैशन में है और मैंने एक्चुअली लड़कियों को देखा है ये पहनते हुए और अच्छा लगता है, यू कैन रियली कैरी इट वेरी वेल ईजिली, तो मैंने सोचा एक तो होना चाहिए. एंड दैट वाज द रीज़न आई टोल्ड माय मॉम टू गेट दिस. ये मुझे एक्चुअली वाइट में चाहिए था, बट ये मल्टी कलर्ड ही मिला, तो मॉम मेरे लिए मल्टी कलर ले आई. दिस वाज फॉर 350 रुपीज़ आई थिंक आफ्टर बार्गेन, बिकॉज ये एनीवे इट सेल्स लाइक हॉट केक्स. तो इन प्रोडक्ट्स पे वो थोड़ी सी बार्गेनिंग कम करते हैं. बट ये मल्टी कलर्ड है तो एक फ़ायदा है, ये मैं प्रीटी मच किसी भी कलर के आउटफिट के साथ पहन सकती हूँ. अगर आपको ऐसे नेक पीसेस का शौक है तो आपको सरोजनी में से बहुत मिल जाएंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बटरफ्लाई नेकलेस और ये ईगल आई नेकलेस हर इंस्टाग्राम पेज पे ब्रांड पे अवेलेबल हैं, बट उनके प्राइसेस उतने इकोनॉमिकल नहीं हैं. मोस्टली सरोजनी में भी आपको ये 100 से 150 के बीच में ही मिलेंगे और सेम आपको ये किसी भी इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे. अब क्वालिटी की बात करूँ तो मैं नहीं गारंटी ले सकती उन इंस्टाग्राम पेज के ब्रांड के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है, बट अगर आई थिंक प्राइस रेंज सेम है तो क्वालिटी मोस्टली सेम ही होगी. ये बटरफ्लाई नेकलेस मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, वहाँ पे दिखा तो मैंने मॉम को बोला उठा लीजिए. Even I'm not so sure about it. So that was as far as the neck pieces and earrings are concerned. Now let's move on to the Indian wear. अब इंडियन वेयर में एक्चुअली दुपट्टे, सूट और ब्लाउज ही हैं जो मैंने मॉम से मंगवाए थे, बिकॉज मुझे ऐसे मल्टी कलर्ड ब्लाउज या दुपट्टे चाहिए थे जो कि मैं वेरिड साड़ीज़ के साथ पेयर कर सकती हूँ. इट बिकम्स वेरी टफ टू एक्चुअली गेट अ पर्टिकुलर ब्लाउज एंड जस्ट कीप इट विद अ पर्टिकुलर साड़ी. आजकल हम हर साड़ी के साथ हर ब्लाउज पेयर कर सकते हैं. कॉन्ट्रास्ट और मैचिंग ज़रूरी नहीं है रखना. मैंने तो टॉप्स के साथ भी साड़ियाँ पेयर करी हुई हैं, वो इक्वली गुड, एलिगेंट और प्रिटी लगती हैं. सो ये 5 कलर के ब्लाउज तो मुझे मॉम से मंगवाने थे, बट बिकॉज उनको साइड की शॉप में ही इतने प्यारे दुपट्टे दिखे तो उन्होंने वो भी ले लिए. 2 दुपट्टे एजेंडा में नहीं थे, बट ये सारे आइटम्स बाबू मार्केट से लिए गए हैं. तो अगर आप दिल्ली के हैं और आपको पता है सरोजनी नगर, तो आपको पता है थोड़ा सा साइड का एक्सटेंशन बाबू मार्केट है, वो जो सीढ़ियाँ चढ़ के है. तो सारी चीज़ें वहीं की हैं. जो ब्लाउज़ की दुकान की डिटेल है और दुपट्टे की वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. बट अगर आप जानते हैं तो राजू दुपट्टे वाले कम ब्लाउज वाले की बहुत बड़ी कोने में दुकान है बाबू मार्केट में. वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी बहुत ही ईजीली. इनफैक्ट इस वैरायटी के साथ और वहाँ बहुत वैरायटी है जिससे कि आप चूज़ कर सकते हैं और उसके प्राइसेस सच में बहुत इकोनॉमिकल हैं, टोटली वर्थ इट हैं. मैं इनसे पहले भी ब्लाउजेस ले चुकी हूँ जो मैं यूएस लेके गई थी. शादी के टाइम भी मैंने अपनी चूज़ों में वेयर करे थे.
तो जीके में जो ब्लाउजेज आपको 2000-3000 के मिलेंगे वो इनके आपको 1000 या 800 तक के मिल जाते हैं। तो अगर आपको वो एफर्ट डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली बाबू मार्केट जाके छाटने में, तो डेफिनेटली दिस इज द प्लेस फॉर यू। तो पहला दुपट्टा ये प्यारा हल्का एलिगेंट दुपट्टा है, which is actually in pista green badam. Yeah, it's a pista green shade, but it's really elegant, nice. Some people can actually call it blue as well. ये ऐसा है और इस पे ये थ्रेड वर्क किया गया है जो कि गोल्ड में है। अब बाकी पूरा नेक का ही दुपट्टा है और साइड में बस ये बॉर्डर लगी हुई है। टुवर्ड्स दी एंड ये झालर है या इसको आप जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो, एक इस साइड पे और एक दुपट्टे की दूसरी साइड पे। तो ओवरऑल इट गिव्स अ वेरी एलिगेंट लुक। ये दुपट्टा एक्चुअली मुझे कलर की वजह से बहुत अच्छा लगा था। और एक और बात है कि इसको आप किसी भी कॉन्ट्रास्टिंग सूट के साथ पेयर कर सकते हो। सो फ्रॉम ऑरेंज टू वाइट टू ब्लैक, दिस विल प्रीटी मच गो ऑन एवरीथिंग। ये एक्चुअली सिर्फ 150 रुपये का है एंड इट्स टोटली वर्थ इट। दिस वाज एक्चुअली माय चॉइस। और बाकी के जो 2 दुपट्टे हैं वो मॉम को बहुत पसंद आए थे। इवेंचुअली मैंने वीडियो कॉल करी तो मुझे भी देख के अच्छे लगे, बट ये वाला तो मैं देखते ही बोल सकती थी कि आप ले लो विदाउट एनी डाउट। द सेकेंड दुपट्टा इज दिस। ये एक्चुअली बाटिक वर्क में है, प्रिंट में। ये सारा काम हाथ से किया गया है। ऐसे दुपट्टे मोस्टली एक्सपेंसिव होते हैं, दिल्ली हाट में बहुत मिलते हैं ऐसे दुपट्टे। आप किसी भी एम्पोरियम में चले जाओ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, लाइक वी हैव सो मेनी ऑफ देम इन कनॉट प्लेस, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बट इसका कलर कॉम्बिनेशन वाज व्हाट आई लव। ये ब्लैक के साथ मरून और थोड़ा सा ग्रीन और बेज है। ये काम किया गया इतना महीन और बारीकी का है। एक्चुअली ऐसी मेरे पास एक साड़ी भी है विच इज़ इन पिंक एंड बेज, वो भी बहुत प्रिटी है। मैंने एक्चुअली हमारे महाराष्ट्र न्यू ईयर पे वो डाली हुई थी, मैं आपको पिक्चर दिखा दूँगी उसकी। हाँ, बट वैसा ही दुपट्टा है। तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, लाइट वेट है और जिस प्राइस में मुझे लगता है दिल्ली हाट में भी नहीं मिलता है ये दुपट्टा, बाबू मार्केट में मिल गया था। सो दिस वाज जस्ट फॉर 500-600 रुपीज़ एंड बहुत ही प्यारा पीस है। ऐसे पीस जब आपको दिखे, जहाँ आपको दिखे उठा लेने चाहिए, बिकॉज ये आगे चल के बहुत मल्टीपल आउटफिट्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट दुपट्टा है ये फुलकारी कम थ्रेड वर्क का। एक्चुअली मुझे पूरा फुलकारी का दुपट्टा चाहिए था, बिकॉज मेरा जो लास्ट फुलकारी का दुपट्टा था वो यूएस में रह गया है, बट मुझे सेम कलर में नहीं चाहिए था, वो मेरा ग्रीन एंड पिंक था। तो इस बार मेरा मन था कुछ ब्लू या ऑरेंजिश कलर में ही कॉम्बिनेशन में मुझे दुपट्टा मिले, और ये वाला मॉम को देखा तो मुझे बहुत प्यारा लगा। ऐसा नहीं है, इसमें और 5-6 शेड्स थे, बट आई लव दिस वन द बेस्ट। तो ये दुपट्टा ऐसे ऑल ओवर है, इसमें एंड में सीपियाँ लगी हुई हैं, तो ये छोटे छोटे सीक्वेंस तो नहीं है बट सीपियाँ ही हैं, और इसकी ये बॉर्डर है विच इज़ इन ब्लैक। सो जो कलर बेस में होता है उसके कॉन्ट्रास्टिंग बॉर्डर मिलती है। एंड ये एक्चुअली थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, बट मोस्टली ये फुलकारी के दुपट्टे 1500-2000 के ही होते हैं। दो दिस वाज आफ्टर बार्गेनिंग ही केम डाउन टू 1100, बिकॉज हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी। सो यस, ये एक्चुअली आप इंडिपेंडेंस डे पे या दांडिया करते हुए कभी जा रहे हैं रात, तो उस टाइम पे ये थोड़ा ड्रेसी दुपट्टा है, तो आप डेली वेयर में तो ये नहीं डाल सकते, बट फॉर एन ओकेजन इट विल लुक रियली गुड, रियली रियली प्रिटी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ब्लाउजेस, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है इस वीडियो का। द फर्स्ट वन इज दिस वन राइट हियर। इट्स इन बेज एंड गोल्ड कलर विथ दिस थ्रेड वर्क ऑल ओवर। इतना बढ़िया काम किया हुआ है इस पर, द फिनिशिंग इज सो गुड। इसमें 3 कलर्स यूज हुए हैं विच इज़ मरून, बेज एंड ब्लैक, बट इट लुक्स सो प्रिटी एंड एलिगेंट। आगे से ये ऐसे और पीछे से ये ऐसे दिखता है, तो एक्चुअली इसमें कुछ भी सी सायरन लुक वाला नहीं है, बिकॉज ये बहुत एलिगेंट पीस है। पीछे ये जो बटन्स लगे हैं जस्ट गिव्स यू अ वेरी वेरी एलिगेंट लुक विथ एनी साड़ी। ये ऐसा कलर है कि आप मोस्टली हर साड़ी के साथ पेयर कर सकते हो, बिकॉज रेड, ब्लैक और बेज प्रीटी मच सारी साड़ीज़ का कॉन्ट्रास्ट होते हैं, या अगर आपको मैच भी करना है तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। इसका प्राइस भी 500 रुपीज़ था, उस हिसाब से इसकी फिनिशिंग, कपड़ा और जो काम किया हुआ है वो जस्ट परफेक्ट है। द नेक्स्ट कलर इज ब्लैक, वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स एवर। This is the black blouse. It has golden work on it, which is again I think thread work. Yeah.
अंदर से ये नेट लगता है बट ऑब्वियसली ऊपर से ये नेट का लगता है बट अंदर लाइनिंग लगी हुई है, सो देयर इज नथिंग नेटी अबाउट इट। इसमें थोड़ा सा शिमर भी है बिकॉज ये जो थ्रेड यूज हुई है गोल्डन वाली ये शिमर की ही है। इट्स वेरी एलिगेंट, सुपर हॉट। इट्स वन ऑफ दोज ब्लाउजेज जो आप हमेशा डाल सकते हो और जिसको ब्लैक पसंद है उसके लिए तो दिस इज इट। ब्लैक एंड गोल्ड कॉम्बिनेशन इज आई थिंक इट्स इटर्नल, इट्स क्लासिक, it will never go out of fashion. So yes, इसका डिज़ाइन भी बेज वाले ब्लाउज की तरह ही है and this is one of my favorite. The next blouse is a red blouse. अब ये थोड़ा स्लीवलेस है और इसमें ब्रोकेड का काम किया हुआ है जो कि ब्रोकेड का कपड़ा है और गोल्ड में काम है। इस एक्चुअली सारे ही ब्लाउजेज में पैडिंग लगी हुई है तो आपको कोई टेंशन नहीं है उसके साथ पर्टिकुलर ब्रा पेयर करने की या टेंशन लेने की। तो इसका भी जो नेक है वो पीछे का डीप नेक है बट अगेन बिकॉज पैडिंग है इट डजंट रियली मैटर, कितना भी डीप हो सकता है, यू आर सेफ। तो इसकी जो खासियत है वो है कि बाकी दो जो मैंने आपको ब्लाउज दिखाए उनमें ये नॉट नहीं था तो ये डोरी बांधने का ऑप्शन इसमें है जस्ट इन केस। एंड ऑफ कोर्स ये रेड कलर में है तो इसका जो कॉम्बिनेशन गोल्ड के साथ बैठता है वो बहुत ही सुंदर लगता है, इट जस्ट पॉप आउट। सो आई रियली लाइक इट। इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है बट अगेन सारे ही ब्लाउज आपको आई वुड से ड्राई क्लीन कराने चाहिए एंड दे आर नॉट वर्थ वॉशिंग इन द नॉर्मल वॉशिंग मशीन बिकॉज ये सारे ड्राई क्लीनिंग लायक ही कपड़े हैं। मोस्टली इंडियन वेयर हम लोग ड्राई क्लीन कराते हैं, इंडियंस को ये पता ही होता है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि इनमें ज़्यादा काम नहीं है, ये बहुत हैवी नहीं है और प्राइस वाइज भी ऑफकोर्स हैवी नहीं है तो ये मैं मशीन में धो देती हूँ तो प्लीज़ वो मत करिएगा। ये सारे ड्राई क्लीन ही होने चाहिए तभी इनकी ये जो शोभा है, जो टेक्सचर है, जो काम किया हुआ है वो लंबा टिकेगा। सेकेंड लास्ट ब्लाउज इज दिस ग्रीन वन। अब इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, ये हॉल्टर नेक पे है, बाकी सारे स्लीवलेस थे और इसकी बैक भी उसी की वजह से अलग है। ये फिर से ब्रोकेड का ही ब्लाउज है, जो काम रेड वाले ब्लाउज पे किया हुआ था सेम काम इस पे भी है। ब्रोकेड का कपड़ा एंड गोल्ड से सेम फ्लावर का डिज़ाइन है। ये हॉल्टर नेक है और पैडेड है, मुझे एक तो हॉल्टर नेक चाहिए ही चाहिए था। एंड ये ग्रीन इतना प्रिटी ग्रीन है, इट्स नॉट दैट तोता ग्रीन और न्यूऑन ग्रीन, इट्स एक्चुअली नॉट इवन डार्क ग्रीन बट इट्स वेरी नाइस, सो सटल एंड इट लुक्स सो गुड। ऐसे कलर की साड़ीज़ भी बहुत प्रिटी लगती है मुझे। लास्ट एंड फाइनल ब्लाउज इज दिस ब्लाउज इन वाइट। दिस इज अगेन द सेम हॉल्टर नेक विच द ग्रीन वन वॉज एंड इसमें भी पैडिंग हुई है, सारे ही ब्लाउजेज में पैडिंग हुई है जैसे मैंने आपको बताया। ये एक्चुअली थ्रेड वर्क किया हुआ है जो वाइट धागे से ही किया हुआ है एंड बहुत ही एलिगेंट लुक देता है ये ब्लाउज। अगेन इसमें भी पैडिंग है तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। ये एक्चुअली उनमें से एक है जो शिमर की साड़ीज़ के साथ बहुत अच्छा लगेगा, जो आजकल मोस्ट इन है। मनीष मल्होत्रा से लेके सारे ही डिज़ाइनर शिमर साड़ीज़ पहन रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं और एक्ट्रेसेस डाल रही हैं तो ये उसके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। ऑल्सो ये कॉटन की साड़ीज़ के साथ भी बहुत प्रिटी लगेगा, जो प्लेन एंड सिंपल साड़ीज़ हैं एंड यू डोंट वांट ड्रेस अप ऑन अ पर्टिकुलर डे बट फिर भी आपको साड़ी पहननी है तो ये उसके लिए परफेक्ट है। So guys, that was all as far as my second video is concerned from Sarojini Nagar, second part of the haul of course। सारा इंडियन वेयर कलेक्शन और जो बेसिकली मैंने लिया और सारी एक्सेसरीज। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को ताकि मैं और वीडियोज़ लाती रहूँ आपके लिए और आपकी सेवा में हाजिर रहूँ। Until next time, this is Richa signing out. Ta-da!